नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। राहुल गांधी भी वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव में अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए प्रचारण में उतर गए हैं। रविवार को राहुल गांधी ने वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया और एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी आपकी सबसे अच्छी सांसद होंगी। वहीं प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार के दौरान एक्शन मोड में नजर आईं। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मैं आपकी बहुत आभारी हूं क्योंकि 5 साल पहले जब मेरे भाई राहुल गांधी वायनाड से चुनाव के लिए खड़े हुए थे तो वे काफी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। बीजेपी और पीएम मोदी द्वारा चलाए जा रहे अभियान से उनकी प्रतिष्ठा नष्ट की जा रही थी। सोशल मीडिया के जरिए इस अभियान में भारी प्रयास, भारी संसाधन लगाए गए ताकि लोग मेरे भाई के बारे में बहुत सारी झूठी बातों पर विश्वास करें। आपने इस पूरे अभियान के बावजूद, उनके बारे में कही जा रही हर बात के बावजूद इस आदमी को पहचाना। आपने पहचाना कि मेरा भाई आपके लिए लड़ रहा था, वो भारत के लिए लड़ रहा था। वहीं वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए अपनी बहन और पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थन में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा एलओपी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मैं भाग्यशाली हूँ कि वो मेरी बहन है। अब आप भी भाग्यशाली है कि वो मेरी बहन है। वो आपकी बहन की तरह, आपकी माँ की तरह, आपकी बेटी की तरह होगी। इसलिए मुझे विश्वास है कि अब आपके पास सबसे अच्छी सांसद है जो आपको मिल सकती है। I owe you a great debt of gratitude. ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെയധികം നന്ദിയുള്ള ആളാണ്. നിങ്ങളോട് വളരെയധികം കടപ്പാടുണ്ട് എനിക്ക്. Because 5 years ago, when my brother stood for election from Wayanad, he was facing immense difficulties. കാരണം 5 വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് എന്റെ സഹോദരൻ വയനാട്ടിലെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. His reputation was being destroyed by a campaign run by the BJP and Sri Narendra Modi ji. ബിജെപിയുടെയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഒരു പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്റെ സഹോദരന്റെ സത്കീർത്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ അത് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്ത്. Through the media, through the social media, huge efforts, huge resources were put into this campaign so that people believed a lot of lies about my brother. കാരണം മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ, അതുപോലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ എന്റെ സഹോദരനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പരത്തിയിരുന്ന നുണകൾ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയൊരു പ്രചരണം ഇവിടെ നടക്കുകയായിരുന്നു. Throughout the history of mankind, whoever has fought for what is right, whoever has fought for the truth, has faced an attack by the forces of deceit. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാണോ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളത്, ആരാണോ ശരിക്ക് വേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, അവരെ അധാർമികമായ ശക്തികളിൽ നിന്നും ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. My debt of gratitude to you is that you recognize this man despite this whole campaign, despite everything that was being said to you. You recognize that my brother was fighting for you. He was fighting for India. He was fighting for the truth, and he was fighting for what was right. എന്റെ സഹോദരനെ പറ്റിയുള്ള ഇത്രയും കുപ്രചരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, എന്റെ സഹോദരൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പോരാടുന്നത്. അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാടിന്റെ കടം എന്ന് പറയുന്നത്. So when the whole world turned their backs on him, you supported him. You gave him courage. You gave him love. You brought him into your homes. You welcomed him as family, and he got immense courage and strength from you. Now, I'm lucky to have her as a sister. I'm lucky to have her as a sister. ഇങ്ങനെ ഒരു സഹോദരിയെ ലഭിക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. Now you are also lucky to have her as a sister. ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമല്ല, എന്റെ സഹോദരിയെ സഹോദരിയായിട്ട് കിട്ടാൻ നിങ്ങളും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. And she has more roles than me. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. I cannot be mother, she can be mother. എനിക്ക് അമ്മയാവാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ എന്റെ സഹോദരിക്ക് അമ്മയാവാൻ സാധിക്കും. She is going to be like your sister, like your mother, like your daughter.
എന്റെ സഹോദരി നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ പോലെ ആകാൻ പോവുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ മകളെ പോലെ ആകാൻ പോവുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ സഹോദരി ആകാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ സഹോദരി. And sometimes I am a little more logical. ചിലപ്പോ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യകാരണ സഹിതം യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ്. But she is more emotional than me. പക്ഷേ എന്നെക്കാളും വൈകാരികമായി ചിന്തിക്കുന്ന വൈകാരികതയുള്ള ആളാണ് എന്റെ സഹോദരി. So I am confident that you now have the best possible MP that you could get. You're going to get the best possible MP that you could get. എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ജനപ്രതിനിധിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. She is not going to let go of any problem that you put in front of her. നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരിക്ക് മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാതെ എന്റെ സഹോദരി ഒരിക്കലും അത് പരിഹരിക്കാതിരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. Like the little girl who didn't let go of the camera for 35-40 years and learned how to use the camera and became better and better at it. She's not going to let go of your problem. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി 30-35 വർഷം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मोदी की सरकार सिर्फ अपने बड़े व्यापारी मित्रों के लिए काम करती है। उनका उद्देश्य आपको बेहतर जीवन देना नहीं है, नए रोजगार ढूंढना नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य या शिक्षा पहल और कार्यक्रम प्रदान करना नहीं है। इन्हें बस किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना है, जिसका साधन आपको विभाजित करना है। वे आपके बीच गुस्सा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, आधिकारिक तौर पर आपको सांसद का नया सदस्य मिलेगा, लेकिन वायनाड देश का एकमात्र ऐसा निर्वाचन क्षेत्र होगा जिसमें 2 संसद सदस्य होंगे, इसलिए हर दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से संसद में जाने का एक दरवाजा है, लेकिन आपके पास संसद में जाने के लिए 2 दरवाजे होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हम एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए मुझे देश की राजनीति के बारे में बोलना है और देश में जो मुख्य लड़ाई चल रही है और ये कुछ ऐसा है जिसे युवाओं को समझना चाहिए। वो उन लोगों के बीच की लड़ाई है जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और जो संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। संविधान सभी भारतीय नागरिकों का रक्षक है। So officially you will have a new member of parliament, but Wayanad will also be the only constituency in the country that will have 2 members of parliament. ഔപചാരികമായി നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ പാർലമെന്റ് അംഗത്തെ ലഭിക്കുകയാണെന്നത് ശരി. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ 2 പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാരുണ്ടാകുന്ന ഏക നിയോജക മണ്ഡലമായിരിക്കും വയനാട് എന്ന് തീർത്തു പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So every other constituency has 1 door going into parliament. You will have 2 doors going into parliament. ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഒരു ജനപ്രതിനിധി പാർലമെന്റിന്റെ മന്ദിരത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുമ്പോൾ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് 2 പ്രതിനിധികൾ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറും എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. But the truth is that we are fighting a political battle. പക്ഷേ ഇതോടൊപ്പം നാം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധം, രാഷ്ട്രീയ സമരം, അതേക്കുറിച്ച് നാം ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. And so I have to speak a little bit about the politics of the country. അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സഗൗരവം നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. And the main fight that is taking place in the country, and this is something the young people should understand, is the fight between those who want to defend the constitution and those who want to destroy the constitution. രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സമരം ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള സമരമാണ്. ഒരു കൂട്ടർ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനും ശാക്തീകരിക്കാനും നിലകൊള്ളുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടർ ഭരണഘടനയെ തകർക്കാനായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം. And the constitution is the protector of all Indian citizens. ഭരണഘടനയാകട്ടെ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരന്റെയും സുരക്ഷയാണ്. Constitution does not care which state you come from, does not care whether you are male or female, does not care what language you speak, does not care what religion you are. It respects every single person. നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്, ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്, ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ്, ഇതൊന്നും ഭരണഘടന ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഭരണഘടന ഇന്ത്യക്കാരായ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഏകോദര സഹോദര ഭാവേനയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്.
and there are forces that are trying to destroy the constitution of India. ഈ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയെ ശിഥിലീകരിക്കാൻ അതിനെ തകർക്കാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുശക്തികൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ട്. They want to divide India between religions, between languages, between different states. അവർ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. And we are never ever going to allow them to do that. നാം ഒരിക്കലും അതിനെ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള Modi ji's government works only for his big businessmen friends. മോദി, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിസമ്പന്നരായ വ്യവസായി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. His objective is not to give you a better life. It is not to find new jobs for your young who are educated. It is not to provide better health or education initiatives and programs. It is simply to stay in power by any means possible. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം ലഭ്യമാക്കലല്ല, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ നൽകുന്നതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതു വിധേനയും അധികാരത്തിൽ തുടരുക എന്നത് മാത്രമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം. And what are those means? Those means are dividing you, spreading anger, spreading hatred amongst you. എന്താണ് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ? ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭീഷണി, അവരുടെ ഇടയിൽ ദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുക, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വൈരാഗ്യം പടർത്തുക, വിദ്വേഷം പടർത്തുക, ഭയം പടർത്തുക. ഇതാണ് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Taking your rights away from you, oppressing democratic institutions, taking your lands, giving them to big people, taking your ports, airports, everything that rightfully belongs to the people of India and handing it to his friends. എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്? ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ന്യായമായി അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമി, നമ്മുടെ തുറമുഖങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യവസായികളായ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് നരേന്ദ്രമോദി ചെയ്യുന്നത്. So my sisters and brothers, the fight that Rahul Gandhi ji has been fighting is your fight. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, രാഹുൽ ഗാന്ധിജി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പോരാട്ടമാണ്. It is our fight, every single one of us standing or sitting on this stage, and it is your fight, each and every Indian who loves his country and who believes in democracy and equality. രാഹുൽ ഗാന്ധി वायनाड सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और राहुल गांधी के ये सीट छोड़ने के चलते यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड के साथ ही रायबरेली सीट से भी सांसद चुने गए हैं। ऐसे में राहुल गांधी को एक सीट छोड़नी थी तो उन्होंने वायनाड छोड़ने का फैसला किया। अब कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को इस सीट से चुनाव मैदान पर उतारा। वायनाड में 13 नवम्बर को मतदान होना है। झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के संकल्प पत्र में 300 यूनिट बिजली फ्री समेत कई बातों का जिक्र है। संकल्प पत्र की घोषणा के दौरान शाह के साथ असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है बल्कि झारखंड का चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर पीएम मोदी के नेतृत्व में चलती हुई बीजेपी सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली बीजेपी सरकार चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन पीएम मोदी से 1 लाख करोड़ का हिसाब मांग रहे थे। मैं हिसाब लेकर आया हूँ, अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता दीजिए। जिससे कांग्रेस और लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे हैं, उनकी यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 तक झारखंड को 10 साल में 84,000 करोड़ देने का काम किया था। पीएम मोदी ने 2014 से 2024 के बीच में 3,08,000 करोड़ रुपया झारखंड को देने का काम किया। शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव। झारखंड की महान जनता ने तय करना है
कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। झारखंड के विकास के लिए सरकार चाहे किसी की भी रही हो, मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। अभी अभी हेमंत जी का एक भाषण देखकर मुझे हंसी आती थी। वो मोदी जी से 1 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे थे। हेमंत बाबू, मैं हिसाब लेकर आया हूं। अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिएगा। जिस कांग्रेस की गोदी में आप बैठे, जिस लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे, यूपीए की सरकार थी 2004 से 14 तक। यूपीए सरकार ने डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड के माध्यम से झारखंड को 10 साल में कितना रुपया दिया? आप आंकड़ा जारी करिए। मुझे मालूम है कि आप आंकड़ा जारी नहीं करोगे, इसलिए मैं ही कर देता हूं। 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया देने का काम यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में किया और मोदी जी ने 2014 से 24 के बीच में 84,000 करोड़ के सामने 3,08,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का कहा। जवाब आपको देना है हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। ये 3,80,000 करोड़ के अलावे 81,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, 15,000 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए और 65,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। मैं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, झारखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा, लेकिन आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा, गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। दिवाली और रक्षाबंधन पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएंगे। झारखंड के चुनाव के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे। 10 नए मेडिकल कॉलेज युवाओं के लिए बनाए जा। सबसे पहले माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दीपावली और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा। किसी को ज्यादा पैसा दें। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगारों का हम सृजन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। झारखंड के युवाओं, आप इसको हेमंत का वादा मत कहना। 5 वर्ष पूरा होने के पहले मैं खुद आऊंगा और 5 लाख रोजगार का हिसाब झारखंड की जनता के बीच में देकर झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र पर सीपीआईएम नेता हन्नान मुल्लाह ने कहा, उनका एक ही संकल्प है कि कैसे राज्य को बर्बाद किया जाए। जीत न पाए तो पैसे से एमएलए एमपी खरीद लिए जाए। उनका संकल्प पत्र केवल रास्ते पर पड़े हुए अधूरे अखबार की तरह है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। आखिर में वे सरकार को तोड़कर अपनी सरकार बनाने वाले हैं। उसका संकल्प तो वही है ना, कैसा बर्बाद किया जाए, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, जात धर्म का इस्तेमाल करके कैसा पॉलिटिक्स में जीता जाए, जीत न पाए तो पैसा से एमएलए एमपी खरीद किया जाए।
उसमें इसी तरह तो उसको वही तो उसका संकल्प है। उसका संकल्प का वो रास्ता में पड़ा हुआ फटा हुआ अखबार का कागज की तरह है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। असल में वो जो करेगा पैसा के बल पर, गुंडों के बल पर, और आखिर में खरीद करके सरकार तोड़ के अपना सरकार बनाने का रास्ता पर। इसके अलावा उसके सामने कोई रास्ता नहीं है, वही एक बीजेपी का रास्ता है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र पर जेएमएम की राज्यसभा सांसद और रांची से पार्टी प्रत्याशी महुआ माझी ने कहा, इस पर कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि झारखंड जब से बना है तब से लेकर आज तक 17-18 साल तक यहाँ बीजेपी की सरकार रही। उनके कई मुख्यमंत्री भी रहे। इसके अलावा रांची में भी उनके बीजेपी विधायक लगभग 30 साल तक रहे, सांसद रहे, पार्षद रहे, मेयर रहे, डिप्टी मेयर रहे। इसके बावजूद न झारखंड का विकास हुआ और न ही रांची का विकास हुआ। बीजेपी के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी अपने चरम पर थी। कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा कि झारखंड की जनता ने 17-18 साल में 2000 साल में झारखंड बना तब से लेके 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार रही। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी जी रहे, रघुवर दास जी रहे, बीच में 3 बार अर्जुन मुंडा जी रहे। इसके अलावा यहाँ पर रांची की बात करें तो यहाँ जो विधायक है वो लगभग 30 साल से यहाँ रहे, 28 साल 5 महीने तक। वहाँ साथ उनके सांसद रहे, मेयर डिप्टी मेयर रहे, उनके पार्षद रहे, डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद न तो झारखंड का विकास इधर हुआ न रांची का विकास हुआ। आप यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ये अभी तो गोगो योजना की बात वो लोग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी अपने चरम पर थी। एक ट्रैफिकर पन्नालाल ने, सिर्फ एक ट्रैफिकर ने 15,000 लड़कियों की लगभग तस्करी की थी जो जेल में है। वो प्लेसमेंट एजेंसी खुलवा के नौकरी देने के नाम पे झारखंडी नाबालिग लड़कियों को ले जाते थे दूसरे राज्यों में और तरह तरह से उनका शोषण होता था। इसे माननीय हेमंत सोरेन जी ने बंद किया, उन्हें वापस लाया। उन्हें मैया सम्मान योजना से इसलिए जोड़ा गया कि 1000 रुपये और उसके बाद 2500 रुपये देकर उन्हें थोड़ा सा आर्थिक मदद करे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। स्किल डेवलपमेंट करा के उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर वो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कोयले की रॉयल्टी का अभी तक राज्य सरकार को नहीं दिया। अगर वो चाहती तो दे सकती थी, लेकिन उनका पर्पस ही नहीं है यहाँ के आदिवासी और यहाँ के लोगों का हित का काम करना। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हेमंत सोरेन मुगालते में है कि बीजेपी उन्हें हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। हेमंत बाबू, बीजेपी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही। बीजेपी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन का मतलब है कि यहाँ पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। आप सभी ने 350 करोड़ रुपए एक साथ कभी देखे हैं क्या? 350 करोड़ रुपए कभी बैंक अकाउंट में आए हैं क्या? कांग्रेस जेएमएम के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए मिले, वो किसके हैं? ये आपके पैसे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे नेता चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी के साथ आए हैं। भाइयों बहनों, हेमंत सोरेन जी मुगालते में है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन लाने, परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। परिवर्तन से मतलब है कि यहां पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। ये इतनी बड़ी सभा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इतनी बड़ी सभा में आप सभी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ कभी देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? 350 करोड़ रुपया कभी बैंक अकाउंट में आया है क्या? ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। वो किसका है भाई? बताओ तो जरा, किसका है? अरे जोर से बोलो, किसका है? और झारखंड की माता बहनों, ये 350 करोड़ रुपया और आलम के घर से मिला
30 करोड़ रुपया आपका है, आपका है। झारखंड के युवाओं, ये 350 करोड़ रुपया और 30 करोड़ रुपया जो है वो आपका है। ये कौन लूट गया भाई? जोर से बोलो जरा, कौन लूट गया? जोर से बोलो, कौन लूट गया? अब उनको सत्ता पर रखना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रखना चाहिए? ये अगर रहे तो आदिवासियों का, युवाओं का, पिछड़ों का, दलितों का पैसा फिर से खाकर अपना घर भरने का काम करेंगे। इसी मुद्दे पर हमारे नेता चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को रांची के एक होटल में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि इसमें लिखी गई एक एक बात बीजेपी का एक एक वादा पत्थर की लकीर है, हम इसे जरूर पूरा करेंगे। न्यूज नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।